A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 4 of your political science book, and that is working of institution. In our earlier class, we have discussed about prime minister, okay, and some councils of ministers. So today we are going to discuss about the cabinet form of minister, and after that we will discuss about the powers of prime minister. Okay, so basically in our last class I told you about the prime ministers and the councils of minister, and as you all know, prime minister is the head of the government. He is the leader of the government, and he is appointed by the president of India, and he also appoints the president of India also appoints the ministers on the advice of the prime minister. Basically, prime minister is considered as the superior one. Okay, he has the supreme powers. Okay, but he has that powers only when he has the support of the legislative or parliament. Okay, अगर पार्लियामेंट का सपोर्ट नहीं है उनके पास, तो प्राइम मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है अगर पार्लियामेंट का काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स का उनके पास सपोर्ट नहीं है तो। सो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, जो मिनिस्टर्स की जो बॉडी है, ठीक है, जिसमें जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको हम काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मेंबर्स, एंड इसको डिफरेंशिएट किया गया है cabinet ministers, ministers of state with independent charges, and the ministers of state, minister of state that is also known as the deputy ministers. Okay, इसमें क्या होता है कि इनको कोई पोस्ट नहीं दी जाती है, कोई मिनिस्ट्री, एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री या इंडिपेंडेंट इंचार्ज नहीं दिया जाता है, बट इनको अपॉइंट किया जाता है दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए। ठीक है, सो cabinet form of government. Now, what is this cabinet form of government? Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything and every decisions, the decisions are taken in cabinet meetings. That is why parliamentary democracy in most countries is often known as the cabinet form of government. Why it is known as the cabinet form of government? Because it is not possible for all the ministers to discuss each and every matter. Okay, and it is not possible for each and every minister to take regular meetings and discuss about each and every policy or each and every decision which government is going to take. So जो मोस्टली डिसीजंस हैं आपके, वो कौन लेता है? वो कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर्स भी लेते हैं। तो दैट इज व्हाई जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको मोस्टली कंट्रीज में कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये जो कैबिनेट है वो एक टीम की तरह वर्क करते हैं। The ministers may have different views and opinions, but everyone has to own up to every decisions of the cabinet. ठीक है, हो सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स के या डिफरेंट मिनिस्टर्स के डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो, ओपिनियंस हो, बट जो फाइनल डिसीजन, लास्ट डिसीजन कैबिनेट का आता है उस पे सब क्या करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं और उसको सब मानते भी हैं। So no minister can openly criticize any decision of the government, even if it is about another ministry or department. Every ministry has secretaries who are civil servants. The secretaries provide the necessary background information to the ministers to take every decision. Now, कोई भी मिनिस्टर जो है, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर है उनको डिफेंस मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उनके डिसीजन को वो उनका अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। हर एक मिनिस्ट्री में क्या है, सेक्रेटरीज होते हैं। सेक्रेटरीज मतलब सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो काफी नॉलेजेबल होते हैं और काफी एजुकेटेड होते हैं और अपने पर्टिकुलर जो भी मैटर हो उनको
काफी एक्सपीरियंस होता है। तो सेक्रेटरीज क्या करते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री के बारे में एक अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन जो है लिया जाता है। फाइनल डिसीजन ऑब्वियसली मिनिस्टर का होता है, बट on the advice of the civil servants or the secretaries. Okay. Pardon me. So the cabinet as a team is assisted by the cabinet secretariat, that is senior civil servant who try to coordinate the working of different ministers. अब देखिए जो कैबिनेट है वो एक टीम की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, और उनको कैबिनेट सेक्रेटरीज क्या करते हैं, हेल्प भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी हो सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन, अब जैसे कोरोना के टाइम पे अब हो सकता है कि आपकी जो इंडिया की इकोनॉमी है बहुत ज्यादा लोअर डाउन हो रही है, ठीक है, लो हो चुकी थी। तो अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सिविल सर्वेंट्स का या ऐसे इकोनॉमिस्ट का या फिर ऐसे कैबिनेट सेक्रेटरी के वो हेल्प लेते हैं, उनकी असिस्टेंस लेते हैं, उनसे उनके ओपिनियंस और व्यू पॉइंट्स लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को सही करने के लिए। तो ये कैबिनेट, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स के साथ, और डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स में क्या है उनको हेल्प भी करते हैं कि हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं और कैसे हमें डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, now just look at this cartoon which is printed in your book. Here it is like एक कैबिनेट लिस्ट है, ठीक है, हो सकता है कोई है, और पीछे जो है मिनिस्टर्स पड़े हैं कि हम कौन मतलब कि किसे कौन सी पोजीशन मिलने वाली है, क्या कौन सी मिनिस्ट्री मिलने वाली है। So the race to become minister is not new. Here is a cartoon depicting ministerial aspirants waiting to get a berth in Nehru's cabinet after the 1962 election. देखिए ये जो आप ये डेस्क में बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की का कार्टून बनाया गया है, और इसके पीछे जो है बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। अब सब ना इस रेस में है कि हमें कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। तो ये जो मिनिस्ट्री की पोजीशन है वो न्यू नहीं है, वो हमेशा से आती जा रही है। देखिए इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम से कि हमें कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, उस टाइम से ये जो है रेस चली आ रही है कि हमें एक अप्रोप्रिएट और अच्छी पोस्ट मिले या हमें कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। राइट, नाउ नेक्स्ट, powers of the prime minister. Now it is very important, powers of the prime minister क्या है। As you all know, the constitution does not say much about the powers of the prime minister or the ministers or their relationship with each other, but he is, as you know, he is the head of the government, he is the leader of the government. Okay, he has the wide range of powers. How? Because he is the leader of the government and he chairs cabinet meetings. he वही decide करते हैं कि हमें कब कैबिनेट की मीटिंग्स करनी है, ठीक है, कब क्या कौन से डिसीजंस लेने हैं, हम किस व्यू पॉइंट्स में क्या पॉलिसीज ला सकते हैं। तो कैबिनेट मीटिंग्स में जो भी होता है उसको लीड कौन करता है, चेयरमैन कौन है, चेयर्स कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो ही हैज वाइड रेंजिंग ऑफ पावर्स। ओके, he coordinates the work of different departments कि different departments में वो coordinate करता है कि क्या हमारे as you all know, his decisions are final in case disagreements arise between departments। तो जो प्राइम मिनिस्टर डिसीजंस लेंगे वही जो है अप्रोप्रिएट है और सूटेबल है, ठीक है, वो उन्हीं के डिसीजन को क्या है एट लास्ट में माना जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। अब जनरल सुपरविजन की कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री कैसे वर्क करेगी, उसको क्या हम किस बिहाफ पे हम काम कर सकते हैं, कौन से इश्यूज पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो सुपरविजन क्या है, गाइडेंस देना। तो मिनिस्ट्रीज को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को क्या करते हैं, वो गाइडेंस देते हैं, जनरली सुपरवाइज करते हैं। he distributes and redistributes the work of the minister, ठीक है, कि अब कौन से मिनिस्टर्स
कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करेंगे, कौन सा मिनिस्टर फाइनेंस में करेगा, कौन डिफेंस में करेगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसने पहले तो एक पोस्ट दे दी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो आपका लास्ट टेन्योर था प्राइम मिनिस्टर, ये नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी का 2014 टू 19 में, उसमें क्या हुआ था, स्मृति ईरानी जो है उनको पहले, जो आपकी कैबिनेट मिनिस्टर भी है, स्मृति ईरानी को सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दिया गया था, बट उन्होंने उनका वर्क रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डाल दिया। तो ये पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है कि वो ही डिस्ट्रीब्यूट और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मिनिस्टर के वर्क को। He dismiss ministers also. Also, he has the power to dismiss ministers. For example, किसी एक मिनिस्टर को उन्होंने अपॉइंट कर दिया कि यू आर इन द मेजर मिनिस्ट्री, मेजर फाइनेंस मिनिस्ट्री में हो, बट हो सकता है कि उनको उनका वर्क सही नहीं लगा, या वो तो वो बोल सकते हैं कि आप इस मिनिस्ट्री से हट सकते हैं और उनको डिसमिस कर सकते हैं वो, ठीक है। नाउ पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा भी होता है कि वो प्राइम मिनिस्टर अगर क्विट करते हैं तो जितने भी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, जितनी भी एंटायर मिनिस्ट्री है, उनको भी क्विट करना पड़ता है, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया कि अब मुझसे ये गवर्नमेंट लीड नहीं हो पा रही है, तो ही हैज द पावर टू क्विट द गवर्नमेंट, और उनके साथ साथ में पूरी मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा, क्विट करना पड़ेगा। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको कभी कभी प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वाइड रेंजेस ऑफ पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत ज्यादा होती है। इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ओवर पब्लिक इज इनॉर्मियस। अब देखिए, एज यू ऑल नो, कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, क्योंकि कैबिनेट ने या फिर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर ने अगर प्राइम मिनिस्टर को क्या है उन्होंने बोल दिया, सपोर्ट नहीं किया, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है वो हट जाते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होती है। तो हम बोलते हैं जो कैबिनेट है जो वो मोस्ट पावरफुल है। और कैबिनेट के अंदर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और वो कैबिनेट जो है सबसे जो प्राइम मिनिस्टर है कैबिनेट के अंदर वो सबसे पावरफुल होते हैं। तो द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इंक्रीज्ड so much. That's why it is commonly known as prime ministerial form also. And sometimes हम देखते हैं कि मीडिया भी जो है बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, कि the media also contributes to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of party. अब देखते हो बहुत बार डिबेट्स चलते हैं, दो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, दो कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। मीडिया भी बहुत ज्यादा क्या करती है, इनको कंट्रीब्यूट करती है कि हम पॉलिटिक्स को और इलेक्शंस को कैसे कंपटीशन बनाएं। वो हो सकता है अपने टीआरपी के लिए भी करती हो, या फिर समटाइम्स फॉर द कंसर्न ऑफ द पब्लिक ऑल्सो, कि वो पब्लिक को बताती है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है सूटेबल है। तो इंडिया में भी क्या है, हम देखते हैं ये जो टेंडेंसी है पावर्स की, ठीक है, कि जैसे हम जवाहरलाल नेहरू के टाइम से देखते आ रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कि जो पब्लिक में पॉलिटिक्स का और जो पॉलिटिकल लीडर है उनका इन्फ्लुएंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, प्राइम मिनिस्टर की जो पर्सनालिटी है कि कौन प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में है। अगर ही इज अ गुड ओरेटर, ही इज अ he has wide ranges of power, he knows the public very well। तो पब्लिक में जो प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसलिए भी क्या है, प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं कि हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज है उनको प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। नाउ जस्ट लुक एट दिस cartoon. This cartoon depicts a cabinet meeting chaired by Prime Minister Indira Gandhi in early 1970s at the peak of her popularity. अब आपको पता है अर्ली 1970s में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टरशिप में थी तो वो काफी पॉपुलर थी। तो देखिए कैबिनेट की मीटिंग्स को कौन हैंडल कर रही है, कौन चेयर कर रही है, इंदिरा गांधी चेयर कर रही है। तो जो प्राइम मिनिस्टर का इन्फ्लुएंस है, उनकी जो पावर है इस कार्टून में हमें शो की गई है कि जो मेन डिसीजन मेकर है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। नाउ
कोएलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक कोएलिशन गवर्नमेंट भी आती है। सो अब नाउ व्हाट इज दिस कोएलिशन गवर्नमेंट? तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हम पिछले कुछ 10-20 सालों में ये देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे जो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स हैं उनमें बहुत से कॉन्स्ट्रेंट्स लग जाते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोएलिशन गवर्नमेंट कैनॉट टेक डिसीजंस एज ही लाइक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस कोएलिशन गवर्नमेंट? क्या होता है? अ गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय एन अलायंस ऑफ टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, usually when no single party enjoys majority support of the members in a legislature. Now just look at your screen. मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ चेयर, ओके। अब ये सपोज आप ये समझ लो, ये ना मेजोरिटी ऑफ पार्टी के लिए चेयर बनाई गई है, पर इस चेयर में खाली हमारे पास बैठने के लिए ये क्या बोलते हैं, नीचे के जो आप बोल सकते हो ना लेग्स नहीं है, तो ये लेग्स हम लगाते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी अपने लेग्स देके, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टीज जब सपोर्ट करती है किसी एक मेजोरिटी ऑफ पार्टी को, ठीक है, उसको हम कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। एक गवर्नमेंट तब बनती है, फॉर एग्जांपल हमें इंडिया में मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट के लिए कितनी सीट्स चाहिए? 272 प्लस सीट्स चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है। हो सकता है गवर्नमेंट जो है उसके पास ना 240 ही आई है, जो एक गवर्नमेंट मेजोरिटी में आ रही है उसकी 240 में ही है, उसको कितनी 32 सीट्स और चाहिए, ठीक है। तो उस 32 सीट्स वो कैसे करेगी? लोकसभा में और भी छोटी छोटी जैसे पार्टीज होती है, जो नेशनल पार्टीज नहीं होती है बट और भी छोटी छोटी पार्टीज होती है, वो क्या करती हैं, उस मेजोरिटी पार्टी का जो भी, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी तो मेजोरिटी में पार्टी है भाजपा की, पूरी मेजोरिटी में है पार्टी की सारी सीट्स भाजपा की है। बट जैसे आज 1990s के टाइम पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनता था, उस टाइम पे क्या था कि कुछ सीट्स जो है छोटी छोटी पार्टी अपना सपोर्ट जो है नेशनल पार्टी को दे देती थी और वो बोलती थी, फॉर एग्जांपल बीजेपी को सीट्स चाहिए 272, उसके पास 240 सीट्स ही है, तो 32 सीट्स और कहाँ से मिली उनको? जो छोटी छोटी जो पार्टीज हैं वो अपना सपोर्ट दिखा रहे थे कि ठीक है हम भाजपा के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना दिया। A government formed by an alliance of two or more political parties, usually when no single party enjoys majority support of the members in a legislature. जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी सपोर्ट लेजिस्लेचर में नहीं इंजॉय करती है, उनके पास नहीं आता है मेजोरिटी सपोर्ट, जब छोटी छोटी पार्टी उनको हेल्प करती है, दैट इज नोन एज कोएलिशन गवर्नमेंट, ओके। तो अब कोएलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर जो है उनको जो डिसीजंस लेना है वैसे डिसीजंस वो नहीं ले सकता है। So the right he has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance powers, ठीक है। उसको different different groups के साथ accommodate करना पड़ता है, ठीक है। accommodate करना मतलब कि उसको adjust करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पावर, हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी है उनके व्यू पॉइंट्स अलग है, उनकी खुद की पार्टी के जो व्यू पॉइंट्स है वो डिफरेंट है, तो उसको उन सब के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और एकोमोडेट करना पड़ता है। He heed the views and positions of the coalition partners and others. अब वो क्या करता है? He also has to heed the views, सबकी positions को, सबके व्यू पॉइंट्स को उसे देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और जितनी भी पार्टीज हैं, और on who support the survival of the government, सबके व्यू पॉइंट्स को उसको देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या कर सकता है, वो डिसीजन ले सकता है। So class, this is all about powers of the prime minister, or you can say about prime minister, okay. Now we will shift to next type of executive, you can say, or that is the president, okay. Now as you know, just like the prime minister, he is the head of the government, the president is the head of the state, matlab he is the first citizen, okay, he is the head of the state,
In our political system, the head of the state exercises only nominal powers. As you all know, इंडिया जो है, इंडिया में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। अब आप अपनी फर्दर क्लासेस में पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म को बहुत डीपली पढ़ोगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा कुछ टॉपिक है, आपका एक स्मॉल टॉपिक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। तो इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। एंड इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर्स। और बहुत ही नॉमिनल पावर्स का मतलब ये हो सकता है कि सुप्रीम पावर्स नहीं है, ठीक है। पावर्स है पर देखने की, आप ये बोल सकते हो कि नॉमिनल पावर का मतलब ये समझ सकते हो कि वो उनके पास पावर देखने के लिए, या पावर तो है बट उसका उस पावर का यूज वो जैसे चाहता है वो वैसे यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। The president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सुपरवाइज करते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री जो है एक आपसी भाईचारा और एक पीसफुल एनवायरनमेंट में रहे, और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सके। Not elected directly. As you all know, president is not elected directly by the members, but he is elected. She is elected by the members of parliament and the elected members of the legislative assemblies. लोकसभा में, और जो हम प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, वो हम डायरेक्ट इलेक्ट करके चूज करते हैं। बट जो प्रेसिडेंट हैं, जो भी प्रेसिडेंट की कैंडिडेट जो भी स्टैंड करता है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वो उसे कौन चूज करते हैं? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हमने चूज किया है, एमपीज को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जिसे हमने चूज किया है, वो उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से प्रेसिडेंट का क्या है, प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होते हैं। और जो भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा होता है, जो भी कैंडिडेट आता है, has to get a majority of votes to win the election. उनको इलेक्शंस को जीतने के लिए, ठीक है, एक प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए उनको सबसे मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन द, अब जितने भी एमपीज हैं, एमएलएस हैं, उनके सबसे मैक्सिमम वोट्स की जरूरत होती है, वही जो है क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। इन दिस पिक्चर आप देखते हो कि अब प्रेसिडेंट जो है नॉमिनल पावर मतलब जितनी भी ओथ होंगी, ठीक है, ये सारी चीजें कौन दिलाएगा, ओथ हो गया या फिर कोई सेरेमनी हेल्ड हो गई, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें प्रेसिडेंट दिलाएंगे। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ दिला रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिला रहे हैं, ठीक है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट्स। अब जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं वो कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राइट नाउ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मिस्टर शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। जितने भी गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, उनको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स, इनको कौन इलेक्ट करते हैं, इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और जितनी भी हमारे इंटरनेशनल हमारी ट्रीटीज साइन होते हैं या कोई भी अग्रीमेंट साइन होते हैं, वो किसके नेम पे साइन होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नेम पे साइन होते हैं, ठीक है। ही हैज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। अब जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं उसके जो सुप्रीम कमांडर है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। Now the president exercises all these powers only on the advisor. अब जितनी भी powers हैं, ठीक है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है या जजेस को अपॉइंट करना होता है, तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और आप ये बोल सकते हो कि कुछ सिविल सर्विसेज में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी एडवाइसेस पे ही क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को ही डिसीजन लेते हैं।
The president can ask the council of minister to reconsider it advice. For example, लोकसभा का कोई भी बिल आया, आपको पता है फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? लोकसभा का जो भी बिल है वो लॉ तब तक नहीं बनता जब प्रेसिडेंट उनपे उसको असेंट नहीं कर दे या फिर उस पर साइन नहीं करते हैं, ठीक है। हमने ऑफिस मेमोरेंडम वाली भी चीज में देखा था कि प्रेसिडेंट जब जब फाइनली उस पर साइन करते हैं, प्रेसिडेंट उनको वो डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कि ये सारी चीजें होंगी। बट कोई भी लॉ है, जैसे अभी फार्मर्स बिल है, उसको बिल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये लोकसभा में ये बिल पास हुआ है, अभी तक प्रेसिडेंट ने इसको कंसिडर नहीं किया है, प्रेसिडेंट ने इस पे साइन नहीं किया है। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को क्या है, जो भी बिल है उसको रिकंसिडर करने की के लिए या फिर चेंजेस करने के लिए एडवाइस दे सकते हैं। अगर फिर भी जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है उनको सेम एडवाइस देते हैं और वही बिल लेकर आते हैं, तो प्रेसिडेंट को उस टाइम पे वो सारी चीजें वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है। Similarly, a bill passed by the parliament becomes a law only after the president given assent to it, ठीक है। If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to parliament for reconsideration. अब जैसे कि इंडिया में एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि 1/3 सीट्स जो है वुमेन के लिए लोकसभा में भी क्या है, लोकसभा में भी रिजर्व होनी चाहिए। बट इस बिल में अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने टाइम तक किसी बिल को रोक के रख सकते हैं। तो उनकी मर्जी है कि वो कब तक इसको रखते हैं और पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए देते हैं। अगर रिकंसिडर के लिए देते हैं और फिर से अगर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और पार्लियामेंट वही बिल वापस उन्हें दे देती है, ठीक है, तो उसे वो साइन करना पड़ेगा, राइट। तो अब देखते हो कि कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर भी है और हमें दिखता है कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर ही नहीं है। यहाँ पे प्रेसिडेंट तो कुछ भी पावर नहीं कर रहा है, सारी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइसेस पे ही सारी चीजें हो रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जहाँ पे वो खुद का एक डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो क्या है? अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। नाउ अब बोलोगे मैम अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, हाउ ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? अब कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर सॉरी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है वो अपॉइंट करते हैं अगर उनका सपोर्ट है, वो मेजोरिटी में है तो अब जैसे देखिए मैंने कोएलिशन गवर्नमेंट का आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है। कोई पार्टी है, ठीक है, और कोएलिशन पार्टी है या नॉर्मल पार्टी है, अब वो लोग एक क्लियर मेजोरिटी आ जाती है, ठीक है, बट उनकी पार्टी का लीडर कौन होगा उस पार्टी के मेंबर्स को बहुत कंफ्यूजन है। और या आप बोल सकते हो कि बहुत सारे क्लेम्स आते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्लेम्स आते हैं। तो लोकसभा में क्या होता है, अगर किसी के पास मेजोरिटी सपोर्ट नहीं है तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि उन्हें जो the president exercises her discretion power। discretion power मतलब he can, discretion का मतलब होता है he can take decision on her own। वो अपने उन्हें जो डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब मेजोरिटी सपोर्ट नहीं होता है तो he can use his discretion power। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं लोग जो लीडर है गवर्नमेंट के, अगर कोई मेजोरिटी सपोर्ट नहीं होता है तो so in such a case the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority in the Lok Sabha with a specified time। और हो सकता है कि उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है कि किसी एक पर्टिकुलर एक कैंडिडेट को उन्होंने अपॉइंट कर दिया और कोई टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि आपको सपोर्ट की मेजोरिटी आपके सपोर्ट में है, आपको ये क्या करना है लोकसभा में कुछ टाइम पे ये प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे लास्ट एक्सरसाइज जब मेजोरिटी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर या मेजोरिटी ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं पे नहीं होता है या फिर बहुत सारे क्लेम्स होते हैं, तब प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकती है। ओके, सो नेक्स्ट एक छोटा सा, अब इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है? देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने देखा जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट होते हैं। तो बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्लस हेड ऑफ द स्टेट दोनों ही कौन होते हैं?
प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। दोनों की पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास होती है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंशियल सिस्टम है गवर्नमेंट का। और यूएस का जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होता है। इट इज अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के नॉर्म्स और कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग होता है कि कौन कैसे अपॉइंट। अब प्रेसिडेंट जो है, यूएस का जो प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, उसके पास ये पावर होती है कि वो पर्सनली चूज कर सकता है जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखिए, अब हमने देखा पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं तो पूरी मिनिस्ट्री को क्विट करना पड़ता है। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। लेजिस्लेचर और प्रेसिडेंट दोनों ही अलग अलग बॉडी है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री, लोकसभा या जो भी उनका लेजिस्लेचर है वो उनके सपोर्ट में नहीं है या कोई डिसीजन में। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो क्विट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, अलग अलग मैटर्स पे वर्क करती है। तो जो लॉ मेकिंग है वो लेजिस्लेचर ही करता है, बट प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर होती है। वेटो पावर अभी के लिए वेटो पावर आप ये समझ लीजिए कि वो डिले कर सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट डिसीजन होगा वो उनके पास होगा। जैसे इंडिया के भी प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर होती है। आप अपने फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे कि वेटो पावर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटो पावर्स क्या होती है। वेटो पावर में प्रेसिडेंट जो है अपने पास कोई भी बिल या कोई भी लॉ बनने से पहले उसको एडवाइस के लिए दे सकता है, उसके लिए टाइम ले सकता है। तो जस्ट लाइक दैट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी क्या है, वेटो पावर होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। सॉरी, so most importantly, the president does not need the support of the majority, as I already told you कि presidential system में majority support नहीं चाहिए, direct elect होते हैं, ठीक है। He has a fixed tenure of 4 years। अब देखिए उनका है ना फिक्स टेन्योर है 4 years तक, चाहे पार्टी चाहे या ना चाहे, उनको क्या करना होता है, वो 4 years वो कंप्लीट करते हैं, उसी के बाद वो जा सकते हैं, ठीक है। अगर पार्टी चाहती है, नहीं चाहती है, मेजोरिटी है, नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंशियल जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है उसमें कुछ वो हट जाए प्रेसिडेंट की पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज अ स्मॉल टॉपिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। बट इंडिया में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पार्लियामेंट होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम होती है। So class, this is all about today. Now in our next class we are going to discuss about our next organ of the government, and that is the judiciary. And this is the last chapter of this is the last topic of this chapter, okay। So most probably ये chapter कल आपका complete हो जाएगा। So thank you so much for joining the class everybody.